Alright everyone, so yesterday we began with the biological basis of behavior or biopsychology. In yesterday's class we elaborated upon various cells which are there in our brain, right, or spread out throughout. So we talked about two types of cells, neurons and glia or glial cells, right? And we know that both of these cells are almost in a 50-50 ratio, ठीक है, and there are a total of 170 billion cells in our brain itself, right? And we know that this 50-50 ratio was given by Herculano and Hossels. Later on we elaborated upon the structure of a neuron, right? Then various parts and what are the functions which are there of each part, right? We elaborated upon, first of all, anybody who will tell me who is regarded as the founder or discoverer of neurons? किनको मिला था Nobel Prize? Who got the Nobel Prize for that? Anyone? Golgi and Santiago. So yesterday we elaborated upon how neurons were discovered, right? We elaborated upon the Golgi's contribution, right? That he was the first person to actually see that the nervous tissue is not connected. ठीक है, he also gave this method of Golgi stain, right? And later on Santiago Ramon y Cagal, ठीक है, कगैल भी याद कर सकते हो आप जस्ट, ठीक है, कगैल actually elaborated upon this particular process. We read about the whole structure. We read about basic structures, ki what is the soma, what is dendrite, what are axon, what are the myelin sheet, right? We also elaborated upon terminal buttons, etc. ठीक है. We also read about the function of glial cells as well, right? Okay, anybody please tell me what do we say, which glial cells produce myelin sheet in CNS? जल्दी से. Which glial cells produce the myelin sheet in CNS? Quickly. Oligodendrocytes. Very good, Kritika. ठीक है, oligodendrocytes. And which glial cells produces myelin in PNS? Swan cells. Very good, Manvi and Kritika. Right, so yesterday we elaborated upon various types of myelin, various types of glial cells which are there, and the most important of all, ठीक है, the most important of all was this oligodendrocyte and Swan cells. Oligodendrocytes are responsible for producing myelin in our central nervous system and Swan cells in our peripheral nervous system. Then we also read about various types of neurons which are there. Firstly, on the basis of function, afferent neurons and efferent neurons. What are the other name? What is the other name for afferent neuron? Quickly. What is the other name for afferent neuron? Sensory neurons. Very good. And efferent neurons are also known as motor neurons, right? I told you about this mnemonic. Same. So sensory are afferent and motor are efferent neurons. And then we also have third type of neurons which are interneuron. But interneurons are only found where? Where do we find interneurons? Quickly. कहाँ पे होते हैं interneurons?
CNS. Very good. Neurons are only found in CNS, and these are the association cells which are going to join in are afferent neurons and efferent neurons. Yesterday we also saw this particular travel happening through these neurons on the basis of this chart, right? So these are the various types of neuron on the basis of function. Now we also have various types of neuron on the basis of structure. We read about bipolar neurons, unipolar or pseudo unipolar neurons, and at last multipolar neurons, right? At last we were discussing about action potential, right? Now today we are going to go through that whole concept once again. ठीक है. Now yesterday, if you remember, I told you that if there is a neuron, ठीक है, for example, if it is one neuron, there are going to be two types of communication which are going to happen. One communication which will happen inside or within the neuron. What is it called? What is the inside implication? Electrical. Yes, it is electrical in nature. And what do we name the process? What is the name of the process? क्या बोलते हैं हम जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्शन पोटेंशियल. ठीक है. So it is going to be known as action potential. Now there are few things which are noteworthy. First of all, the transmission always happen in one direction. सिर्फ जो ट्रांसमिशन है वो हमेशा डेंड्राइट से सिनेप्स तक होगा या सिनेप्टिक बटन तक होगा. इट कैन नॉट गो इन रिवर्स. ठीक है. तो एक ही डायरेक्शन में होगा, हमेशा याद रखें. एंड इनिशियली जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होती हैं? रिसीविंग साइट, राइट? वी रेड अबाउट दैट. एंड दे विल रिसीव द इम्पल्स. ठीक है. एंड वंस इट एंटर्स द बॉडी, वंस इट एंटर्स द सोमा, दिस इज नोन एज एक्सॉन हिलक, राइट? ये भी हमने कल पढ़ा है डिटेल में. एक्सॉन हिलक हिट्स द पॉइंट जहाँ पे सोमा ऑफ द सेल इज कनेक्टेड विद द एक्सॉन ऑफ द सेल. So once it reaches the axon hillock, a electrical impulse is started. पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था. Now what will happen? Initially हम अगर बात करते हैं, let me add another slide. For example, this is my cell membrane. Initially the membrane also has a potential. What is the name of the membrane potential when the potential is at rest? क्या बोलते हैं हम इसको? What is it known as? Quickly. Resting potential. Very good. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं. दे नीड अ सर्टन एनर्जी, अ सर्टन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वर्क. सिमिलरली आर न्यूरॉन्स ऑल्सो रिक्वायर अ सर्टन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फायर. जो हम बोलते हैं कि न्यूरॉन ट्रैवल कर रहा है इम्पल्स को, न्यूरॉन ट्रांसफ़र कर रहा है इम्पल्स को, वो कब होगी? उस एनर्जी से मिलके. ठीक है. एंड वी कॉल दिस प्रोसेस एज फायरिंग. तो कि न्यूरॉन फायर कर रहे हैं. सो दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, इट इज व्हाट? -70 मिली वोल्ट. करेक्ट. नाउ वी रेड दैट देयर आर, हमने अभी क्या पढ़ा? हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारे सेल के जो अंदर का चार्ज है वो कितना है? -70 मिली वोल्ट. सो देर इज नेगेटिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो नेगेटिव आयंस है वो ज़्यादा अंदर है देन आउटसाइड. कैन वी से सो? ठीक है.
So now when I look at a particular cell, ठीक है, inside our cell we will find, तो जो आयन्स होते हैं ना, हमारे इलेक्ट्रिकल आयन्स जिनको हम बोलते हैं, देर आर ऑफ टू टाइप, या तो वो पॉजिटिव होंगे नेचर में या फिर वो होंगे नेगेटिव इन नेचर. ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केटायंस. ठीक है, एंड जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनायंस. ठीक है, केटायंस एंड एनायंस. तो जब मैंने बोला यहाँ पे अंदर माइनस में ज़्यादा है, इट मीन्स अंदर एनायंस ज़्यादा है. हम इलाबरेट नहीं कर रहे कि कौन सा केमिकल है, कौन सा एटम है, हम कुछ इलाबरेट नहीं, हम बस ये बोल रहे हैं एनायंस ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. ठीक है, वी आर ओनली कंसर्न्ड विथ टू केमिकल्स है, सोडियम and potassium, which play very very crucial role in our impulse transmission, in our electrical impulse transmission or action potential, right? So inside the cell, ठीक है, this is when the cell is at resting potential. ठीक है, the cell is at rest. Inside the cell there are very less potassiums, ठीक है, and a lot of anions. क्लियर, सबको क्लियर है अब तक? क्यों है अनायन ज्यादा अंदर? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, मतलब नेगेटिव आयन ज्यादा है. करेक्ट. एंड आउटसाइड द सेल हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं. ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ सोडियम. ठीक है, आउटसाइड द सेल्स. बाहर केटायन ज्यादा है मतलब. ठीक है, एंड हमने सॉल्ट बोला तो मतलब हम बोल सकते हैं क्लोराइड के भी थोड़ा है. ठीक है, बट देर आर अदर केटायंस ऑल्सो विच कैन बी फाउंड. ठीक है, दिस इज द कंडीशन व्हेन द सेल इज एट व्हाट, रेस्टिंग पोटेंशियल. मतलब अभी तक कोई भी इम्पल्स जब तक रिसीव नहीं हुआ है तब तक हमारा सेल की ये कंडीशन है. दिस इज हाउ वी फाइंड द सेल. ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है जो हमें मिलता है. करेक्ट, एवरीवन इज देयर विद मी. सबको समझ आ गया कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अ न्यूरॉन और अ न्यूरल सेल व्हेन इट इज एट रेस्ट. क्लियर. नाउ व्हाट विल हैपन, देखो हमने कल दो ऑपोजिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ा था. देयर आर two opposing forces which can bring about a change. यहाँ पे internally माइनस चार्ज ज़्यादा था, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था. Now there are two opposing forces which can bring a change. One is diffusion and another one is electrostatic pressure. ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? क्विकली, आई टोल्ड यू अबाउट दिस येस्टरडे ऑल्सो. क्विकली, व्हाट इज डिफ्यूजन? जल्दी से बताओ क्या होता है डिफ्यूजन. गोइंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट. तो जो भी हमारे सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये अपने सेल की कंडीशन देखी है तो अब बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर कम है, तो सोडियम अंदर आना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आना चाहेंगे. और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर नहीं है तो इट विल वांट टू मूव आउटसाइड. तो जो वन मूवमेंट, ठीक है, सो द मूवमेंट, वेट, सो द मूवमेंट or change in this membrane potential can be brought by these two opposing forces. एक तो हमें पता है डिफ्यूजन मतलब जो हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, जो मॉलिक्यूल है, इट विल ट्राई टू मूव टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया, ये हो सकता है. और दूसरे टाइप का चेंज जो आ सकता है वो क्या आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से. मतलब जो आयन का मूवमेंट है, हमारे को पता है कि पॉजिटिव अनपॉजिटिव आयन जब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन. अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है तो क्या होगा, अट्रैक्शन. तो इसकी वजह से भी मूवमेंट हो सकता है आयंस का.
या मॉलिक्यूल्स का? कैन वी से सो? द मेम्ब्रेन पोटेंशियल और द रेस्टिंग पोटेंशियल will get affected because of these two opposing forces. One, diffusion, कि जो हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो स्प्रेड आउट है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, दे विल ट्राई टू मूव इनसाइड और आउटसाइड बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जहाँ जिसकी वजह से जो हमारे आयंस है वो या तो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से या फिर रिपल्स होंगे. क्लियर? सबको क्लियर है? Now what is happening here, अगर diffusion हो जाए it will bring about a chemical change, जिसको हम chemical gradient भी बोल सकते हैं. एंड हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिकल चेंज आ सकता है हमारे सेल के अंदर. कैन वी से सो? Because of these two opposing forces at play, there will be certain differences, certain gradients which will be seen in our cell. पहला चेंज केमिकल होगा, क्योंकि अगर सोडियम बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर आने की कोशिश करेगा, और अगर पोटाशियम अंदर ज़्यादा है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा. विल इट हैपन? जिसकी वजह से केमिकल चेंज होगा हमारे सेल के अंदर. एंड सेकेंडली इलेक्ट्रिकल चेंज भी होगा. अब अगर हमारे कुछ पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, तो देयर विल बी अ इलेक्ट्रिकल चेंज ऑल्सो. आयन का चेंज भी होगा हमारा, कि पॉजिटिव आयन अंदर ज़्यादा है, नेगेटिव आयन अंदर ज़्यादा है, एट्सेट्रा. कैन वी से सो? ठीक. नाउ द मूवमेंट विल बिगिन. थर्डली क्या होगा, अब हमारा मूवमेंट एक्चुअली में बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन एंड ESP द मूवमेंट विल एक्चुअली स्टार्ट. अब जो हमने ये सेल मेम्ब्रेन की बात की है कि ये हमारी सेल का मेम्ब्रेन है, इट इज़ एक्चुअली सेमी परमिएबल. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेमी परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी? Anyone? Some particles can pass through it, right? So this membrane is semi-permeable, which means it will allow only some particles, some molecules to pass through that. ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स है, मतलब सिर्फ ये सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट्स को ही अलाउ करेंगे. ठीक है, दीज आर सोडियम पोटाशियम पंप्स. क्लियर? ठीक है. नाउ यू टेल मी, मैंने आपको ये बोला कि जो Na है इट विल ट्राई टू कम इन साइड एंड द पोटाशियम विल ट्राई टू गो आउटसाइड. नाउ यू विल से कि कौन कैसे मूव आउटसाइड या मूव इन साइड करेंगे, एट व्हाट क्वांटिटी. सो एक हॉटकिन ने स्टडी करी थी जहाँ पे दे फाउंड आउट कि द मूवमेंट ऑफ Na एंड पोटाशियम, ठीक है, बोथ पॉजिटिव आयन, इज इन द रेशो ऑफ 3:2. मतलब 3 Na will go inside and 2 sodium will go outside. Clear? ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ मूवमेंट. तो अभी भी ज़्यादा पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं और कम पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं. इवन दो पोटाशियम इज ऑल्सो अ पॉजिटिव आयन, बट द लेस पॉजिटिव इज गोइंग आउट देन द पॉजिटिव आयन कमिंग इन. Can we say that? Can we say that? So what will happen? It will result in depolarization. Now everyone जिन्होंने भी कल क्लास अटेंड की थी, please tell me what is depolarization? Quickly, what do we understand by depolarization? Very good.
positive charge will increase, cell will move from negative to positive. So depolarization is the process when the negative charge is moving towards पॉजिटिव चार्ज. तो इनिशियली हमने क्या कहा था कि जो हमारा सेल है वो कहाँ पे था, 70 मिली वोल्ट पे. अब वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, मतलब कम, मतलब माइनस से पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, दिस वाज द थर्ड आई थिंक, यस. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, ग्रेजुअली जो हमारा सेल है इट विल रीच अराउंड माइनस मिनी वोल्ट. ठीक है. -55 या -50 मिली वोल्ट मानते हैं हम. ठीक है. इट इज व्हेन द एक्शन पोटेंशियल विल बिगिन. आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा सेल है या जो हमारे सेल का मेम्ब्रेन है, जैसे हमें जो हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं उनको मिनिमम 220 मिली वोल्ट का चाहिए होता है पावर, सो दैट दे कैन रन. Similarly, our cell membrane also needs to have a potential, needs to have a energy, electrical energy of around -55 millivolt. Only then the action potential will begin. अब तक सबको क्लियर है? If you have any doubt anywhere till now, please let me know. सबको क्लियर है? ठीक है. Now, so for example, if I plot this chart, ठीक है, this is -70 millivolt for example. ठीक है. यहाँ पे और इम्प्रूव हो रहा है, this is 40 millivolt and ये हमारा एक और -55 millivolt. So initially the cell was here. This is the situation of what? Resting potential. ठीक है. Once the positive charge starts to increase, the action potential is initiated. So this is the point wherein the action potential is initiated. Then what is happening? अब हमें पता है कि क्या हो रहा है. यहाँ पे जो सोडियम है वो अंदर आ रहा है बार बार बाय 3:2 की रेशो इन कंपैरिजन टू सोडियम. सो पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज होता रहेगा हमारा. ठीक है. सो यहाँ पे दिस इज द पीक ऑफ आवर एक्शन पोटेंशियल. ठीक है. इस पॉइंट के बाद वंस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेस 40 मिलीवोल्ट और 45 मिलीवोल्ट, द एक्शन पोटेंशियल स्टॉप. मतलब जैसे ये हमारा नर्व था या ये हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पे जब एक्साइटेशन शुरू हुई, यहाँ पे हमारा जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होनी शुरू हुई, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, टिल द टाइम इट रीचेस आवर साइनैप्स 40 मिलीवोल्ट तक रीच हो जाएगा. उसके बाद हमारा चार्ज और नहीं बढ़ेगा. क्लियर? सबको क्लियर हो गया है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल? नाउ अब हमारे को एक और फिनोमेना के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नोन एज ऑल और नन फिनोमेना. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू वी मीन बाय ऑल और नन फिनोमेना? एनीवन? Anyone, what is all or none phenomena? Have you heard about all or none phenomena before? Okay. So basically जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं हम बोलते हैं either the cell will fire fully, मतलब या तो जो सेल है या फिर फॉर एग्जांपल जो अप्लायंस है हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी, या तो वो फुली काम करेगा या फिर वो काम ही नहीं करेगा. सो ऑल और नन फिनोमेना बेसिकली स्टेट्स दैट ईदर द सेल विल फायर फुली और नॉट फायर एट ऑल. तो आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे 70
था और हमारा 65 हो गया तो थोड़ा सा हमारा इम्पल्स ट्रैवल करना शुरू कर देगा. नो, इधर या तो पूरा 55 से लेके 40 तक जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं. इधर दिस एक्शन पोटेंशियल विल नॉट इनिशिएट. Clear? What is all or none phenomena? Either the cell will fire fully or it will not fire at all. Clear? And during this stage of depolarization, ठीक है, यहाँ पे और एक ही एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होगा, यहाँ पे और कोई एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट नहीं हो सकता. सो आई एम राइटिंग हियर ओनली वन AP कैन बी इनिशिएटेड है. अगर एक एक्शन पोटेंशियल, एक इम्पल्स ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है तो दूसरा ये नहीं. फॉर एग्जाम्पल एक टच की सेंसेशन थी, इफ इट इज प्रोसेसिंग तो ये नहीं है दूसरा भी एक साथ प्रोसेस नहीं करेगा. पहले वो कंप्लीट होगा, यहाँ तक पहुंचेगा पीक तक, फिर दूसरा स्टार्ट होगा. क्लियर? सबको क्लियर है अब तक क्या हुआ है? ठीक है. नाउ What will happen next? अब हमारा पीक रीच कर चुका है एक्शन पोटेंशियल का, सेल पूरी तरह से फायर कर चुका है, ट्रांसमिट कर चुका है. नाउ देयर विल बी अ रिफ्रैक्टरी पीरियड विच विल बिगिन. रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब रीसेट, कि अब जो हमारा सेल नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पे आया था, इट विल रीसेट अगेन, मतलब अब दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा. Clear? So now what will happen in the refractory period? दोबारा से repolarization will begin. ठीक है, ये क्या है? repolarization. ठीक है, repolarization में क्या बोला हमने, क्या होगा repolarization में? anyone, जैसे depolarization में नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो repolarization में क्या हो रहा है? again it is moving from पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए कि व्हाट इज डीपोलराइजेशन एंड व्हाट इज रीपोलराइजेशन. ठीक है, सो इट विल मूव डाउन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. नाउ समटाइम व्हाट हैपन्स, कभी कभी जो हमारा सेल है वो ज़्यादा ही नेगेटिव में चला जाता है, अराउंड -70 मिली वोल्ट तक भी चला जाता है. तो दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन, मतलब कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया. ठीक है, सो आई विल राइट अबाउट हाइपर पोलराइजेशन ऑल्सो. मोर देन रिक्वायर्ड पॉजिटिव, more than required negative charge. ठीक है, बट हमेशा वो जो हाइपर पोलराइजेशन है वो अपने आप को रीसेट कर देगा. ठीक है, इनिशियली दोबारा कोई प्रोसेस बिगिन हो उससे पहले 70 पे दोबारा पहुंच जाएगा हमारा सेल -70 मिली वोल्ट पे. क्लियर? एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज हैपनिंग हियर? नाउ देर इज वन थिंग विच इज नोट वर्दी. ठीक है, यहाँ पे जो रीपोलराइजेशन है, आई सेड कि ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज ओनली वन एक्शन पोटेंशियल कैन बी प्रोसेस्ड, बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड. ओके, व्हाट्स हैपनिंग? ठीक है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप. वन, इट कैन बी एब्सोल्यूट इन नेचर, जैसा हमने ये पढ़ा कि एब्सोल्यूट है, यहाँ पे नो अदर एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड. ठीक है, सिर्फ रीसेट ही हो रहा है. बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो relative in nature, which is known as relative refractory period. For example, I think yesterday also I told you कि जैसे आप एक बहुत लंबी ट्रिप पे गए हो, ठीक है, आप घर आए, आप बहुत थक चुके हो, ठीक है. नाउ इफ देर विल बी समवन हु विल बी मेकिंग अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कुछ काम कर दो या कुछ बोल दो, तो आप बोलोगे नो, आई एम ऑलरेडी टायर्ड, आई विल नॉट डू एनीथिंग नाउ. ठीक है, आप अपने रीसेट पे हो. वो क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. बट समटाइम्स कोई स्ट्रोंगर स्टिमुलस होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपके
father I, and he starts shouting at you, and he'll be like, no, you have to get up and you have to do this work. So now you will get scared and you will get up and you will do that work even though you were so tired. ठीक है. So there is a relative refractory period जहाँ पे a stronger stimulus can initiate a action potential again. क्लियर. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे रीपोलराइजेशन में थे तो दोबारा से अगर इफ़ यू वर मे बी एट -60 और मे बी 30 मिली वोल्ट एक्सेट्रा, और एक और स्टिमुलस मिल गया आपको जो और भी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है. सो इट माइट अगेन बिगिन अ एक्शन पोटेंशियल. क्लियर. सबको क्लियर है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ठीक है. एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे टेक प्लेस करता है? इनसाइड अ सेल विद इन अ पर्टिकुलर न्यूरॉन. ठीक है. मतलब अगर हमें पता है कि वी हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विच आर देयर, तो जो ये प्रोसेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही टेक प्लेस कर रहा है. दिस इज अबाउट इट. ठीक है. दैट इज द होल प्रोसेस. अब ये अब जब नेक्स्ट न्यूरॉन के पास पहुंचेगा तो नेक्स्ट न्यूरॉन में होगा, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन. एंड इट इज़ वेरी वेरी क्विक. मतलब पढ़ने में हमें शायद आधा घंटा लगा, बट इट इज़ वेरी वेरी क्विक. ठीक है. क्लियर है. इफ यू हैव एनी डाउट एनी वेयर इन एक्शन पोटेंशियल, प्लीज लेट मी नो. क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? ठीक है. देखो, दैट्स द क्रक्स ऑफ इट. जो यहाँ पे नोट्स अटैच है, दे आर इन मच 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 मोर डिटेल. ठीक है. यहाँ पे आपको हर एक चीज़, वेट आई डिलीट दैट लेटर. ठीक है. कि यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का डिटेल में, ये चार्ट को डिटेल में, पॉजिटिव कब कौन से पम्प्स खुले हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यू कैन रीड दैट. बट वॉट वी हैव रेड सो फार, ये मेजर प्रोसेस है. दीज आर सम एक्स्ट्रा डिटेल्स. इफ़ यू आर गोइंग टू रीड दैट, मे बी अगर आपको अपने मास्टर्स के एग्जाम देने होंगे या बैचलर्स के एग्जाम देने होंगे, एंड यू हैव टू राइट इन वेरी वेरी डिटेल, वरना ये प्रोसेस ऑलरेडी इतना लंबा है, आप डिटेल में रखोगे. दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है. तो दैट इज अबाउट इट. I would want you all to take your 10-minute break, and then we will do the synaptic transmission, which is the communication from one neuron to another neuron. So take your break, and then we will start again.